Hi, good morning everyone. Welcome to our new topic bar graph and pie chart. So I am sending some few questions of this bar graph. You very well know that how to draw the bar graph. Like here in your first question you have 6 countries. Data is given of accident death per thousand. Death is there in accident, so that was in per thousand. So you have to draw that in the bar graph. You have data is given India 90, Japan 100, Europe 85, Sri Lanka 75, Australia 90 and China 90. So you have better if you draw in the graph paper, so it will be better. So here what I will do, so at 1 centimeter distance I mark this blocks like this. India, Japan, Europe, Sri Lanka, Australia and China. So that is your country's name here. So your death rate should be in the vertical order. So I saw that maximum death rate is 100. So I start from 10, like take as one box as 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. So I will mark in front of that, like if India is 90, so I mark the rectangle in front of 90. Similarly, Japan is 100, Europe is 85, Sri Lanka is 75, Australia is 90 and China is 80. So here you have to write at the heading death per thousand in 6 countries. स्केल आप क्या लोगे, ये जो आपका वर्टिकल साइड्स है, जो आपका एक बॉक्स है, that represent 10,000 death because its data is given according to the thousand. So here if it is 10, so that means that will be one box will contain your 10,000 death rate. So that you have to show off in this. Okay, now your next question is, after that your second question, you have already bar graph is given to you. The following graph shows the number of cars sold by a company from July to December 2015. So here already you have scale is given 0, 200, 400, 600, 800, 1000 and 1200. By just watching this graph, bar graph, you have to answer few questions like in which month the sale was maximum, so that is October. In which month the sale was minimum, November. In which month there was a sudden growth in sale of car. Sudden growth in sale of car is in sudden, like in September it was very low and sudden change is in October, so that is in October. Now find the ratio between the maximum and minimum sale. मैक्सिमम मिनिमम सेल की रेशियो लेनी, तो आपने देखना मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी है, दैट इज 1200, मिनिमम है 200, तो 1200 रेशियो 200 इज इक्वल टू 6:1 व्हेन यू सॉल्व दैट वन. नेक्स्ट इज योर टॉपिक इज पाई चार्ट. पाई चार्ट में क्या करते हैं, एक जो पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री एंगल का होता है, तो जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं उसको हम प्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिग्री और आइदर इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज. अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग टू होगा तो वो 100% की फॉर्म में होगा, बट अगर आपका डिग्री की फॉर्म में होगा तो टोटल सारे सर्कल जितनी डिग्रीज में डिवाइड होगा वो 360 डिग्री टोटल आना चाहिए. तो अगर तो अब एंगल आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, अगर आपको वैल्यू दी हुई है और टोटल वैल्यू की टोटल जितना भी आपको आइटम्स दिया है उनकी टोटल से आप डिवाइड करोगे इनटू और 360 डिग्री. दैट मीन्स 360 डिग्री को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसमें ऊपर वाले पार्ट्स का ये पर्टिकुलर एंगल है. तो इस तरह से आपने एंगल निकालना है. सो आई विल शो इन द क्वेश्चंस ऑल्सो. और अदरवाइज अगर आपको परसेंटेज निकालनी है, तो अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो आपने पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ 360 डिग्री की 360 डिग्री का इतना परसेंटेज कितना बन रहा है, ओके, वो डायरेक्टली आपने अप्लाई करना है परसेंटेज. क्योंकि कई बार क्या होता है आपको पार्ट दिया होता है, परसेंटेज नहीं दिया होता, तो आपने पार्ट ऑफ 100% कर देना है कि 100% का इतना पार्ट है, ओके. तो अगर आपको परसेंटेज दिया तो परसेंटेज ऑफ आपने लिख देना 360, क्योंकि 360 डिग्री को ही इतने परसेंटेज में डिवाइड किया गया. अब जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन था, नेक्स्ट आपको एक ऑलरेडी ये आपको गिवन था पाई, इसमें अदर्स 30% था, फूड सेविंग 12.5%, हाउस रेंट 1/4 एंड ट्रांसपोर्ट 1/8. तो परसेंटेज ऑफ सैलरी मिस्टर शर्मा स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट इज़ 1/8, सो 1/8 ऑफ 100%. अगर ये परसेंटेज फॉर्म में आ गया, सो दैट मीन्स
होल जो एक पूरे सर्कल का जो परसेंटेज है वो 100% की फॉर्म में काउंट होगा। ओके, तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ सैलरी निकालनी है तो 1/8 ट्रांसपोर्टेशन की निकालनी, तो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है 1/8 ऑफ 100% की, 100% का ही 1/8 पार्ट है। तो जैसे ही आपने कैलकुलेट किया परसेंटेज एज इट इज़ ही रहेगा। इसको मैंने 100% इसलिए लिखा क्योंकि मैंने 1/8 का परसेंटेज निकालना है। तो ऑलरेडी आपने फ्रैक्शन चैप्टर में किया था कि हम जब किसी फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, यू नो वेरी वेल ऑन दिस वी हैव डन दिस वन। लाइक अगर मुझे 1/8 का परसेंटेज निकालना है तो 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये वाला जो साइन है आपका परसेंटेज में चेंज हो जाता है 1/8 100 इंटू परसेंटेज, जो आपकी ये वाली फॉर्म है आपकी। तो बेसिकली ये जो आपका 1/8 100% है, तो दैट मीन्स 1/8 इंटू 100, और जो बाहर आप इसको डिवाइड करोगे 100 से तो वो परसेंटेज साइन में चेंज हो जाता है। मैंने आपको तब बोला था कि ये जो परसेंटेज है दैट परसेंटेज मीन्स 1/100, वो एक सिंबल दिया गया 1/100 को। ओके, तो आपने अगर 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, और जो डिवाइड वाला 100 है परसेंटेज में चेंज हो जाएगा और कैलकुलेट करके आ जाएगा 12.5%. That we have done in our fraction chapter also, where we have to change to fraction to percentage, like we done that in this case. Now here next is what percent of his salary was spent on transport, what fraction of his salary was spent on food. फूड पे, अब फूड का यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो फूड पे कितना उसने स्पेंड किया फ्रैक्शन, फूड का फ्रैक्शन निकालना है। पहले तो आपने ये लिखना है कि फूड का परसेंटेज कितना था। अब फूड का परसेंटेज निकालने के लिए पहले तो, क्योंकि टोटल सारा परसेंटेज मिला के 30,000 खर्चा हुआ, तो सेविंग ऑफ मिस्टर शर्मा की सेविंग 12.5% है, अदर एक्सपेंडिचर 30% है, ट्रांसपोर्ट पे अभी हमने निकाला 12.5%, और हाउस रेंट का भी हम परसेंटेज इसी मेथड से निकाल लेंगे 1/4 इंटू 100 परसेंटेज, जो 25% आ गया। ओके, अब पाई चार्ट क्या होता है, अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखो तो 100% की फॉर्म में होता है। तो अगर मेरे पास 4 चीज़ों की परसेंटेज आ गई है तो 100 में से ये चारों का परसेंटेज प्लस करके अगर मैं 100 में से माइनस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 20%, कि ये कितना बचा 20%, और 20% को परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये जो परसेंटेज साइन है वापस अपने इसी सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है 1/100, तो 20/100 इज इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि आपको ऑलरेडी एक पाई चार्ट गिवन है, आपको इसमें बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एनुअल सेल्स कम फ्रॉम द हाउस होल्ड। यहाँ पे हाउस होल्ड की 15% है, दैट यू हैव टू डायरेक्टली आंसर। और किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा सेल है, फूड की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनुअल सेल्स कम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन का 25% है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, परसेंटेज को आप जो परसेंटेज का वैल्यू है डिवाइड बाय 100, लाइक परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100, उसमें चेंज करोगे, डिवाइड किया 1/4 फ्रैक्शन आ गया। उसके बाद जो डी था कि अगर इन पांचों सेक्शन की जो भी सेल है एनुअल सेल्स, ये पूरा मिला के परसेंटेज मिला के 80%, मतलब इस पूरे का 100% जो बनता है वो 80 लाख बन रहा है। ओके, तो मुझे गारमेंट और फर्नीचर का निकालना है, तो गारमेंट और फर्नीचर का परसेंटेज कितने रुपीस में आएगा, तो गारमेंट 15% है, फर्नीचर आपका 15% है, 30% ऑफ 15 + 15 कितना आ गया 30, और 80 लाख का जो 30% है वो किस पे खर्चा हुआ, गारमेंट और फर्नीचर पे। तो हम सीधा डायरेक्टली 30% ऑफ 80 लाख निकाल लेंगे, परसेंटेज 100 में चेंज हुआ, डिनोमिनेटर में 100 आ गया, 30/100 इंटू 80 लाख, दैट इज़ 24 लाख। तो टोटल 24 लाख रुपीज़ इसमें गारमेंट और फर्नीचर में आपके यूज़ हुए। नेक्स्ट है आपका जो 4th क्वेश्चन था कि अगर आपको दिया हो डाटा ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 720 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 700 स्टूडेंट्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ये आपको उसको पाई चार्ट में शो ऑफ करना है। तो पहले तो आपने देखना है कि 120, 180, 240, 80 और 100 टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 720।
ओके तो जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर इस तरह की क्वांटिटी दी हो तो मुझे पर्टिकुलर क्वांटिटी का निकालना है, तो दैट मीन्स अगर ये टोटल 720 है तो दैट मीन्स 360 डिग्री को अगर आप 720 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, उसमें 120 पार्ट्स किसके आ जाएंगे, बस के, 180 पार्ट साइकिल के, 240 पार्ट ट्रेन के और 80 पार्ट कार के और स्कूटर के 100 पार्ट। तो आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें, आप टेबल जनरेट करोगे इसमें। ओके 360 डिग्री के जब आपने 720 पार्ट्स किए, 720 पार्ट्स के 120 पार्ट्स बस के हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 120 आउट ऑफ 720 ऑफ 360 कि आपके पास जितना पार्ट है उसको टोटल पार्ट से डिवाइड करना और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली आपका साइकिल का 180/720 90 डिग्री, 240/720 120, कार का आ जाएगा एंगल 40 डिग्री और ये जो आपका स्कूटर का एंगल आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो आप इसको बाद में चेक भी कर लो कैलकुलेशन की क्या टोटल आपका ये 360 डिग्री होता है, क्योंकि पूरे के पूरे पार्ट्स को एक एंगल की फॉर्म में डिवाइड किया गया तो वो 360 डिग्री ही टोटल होना चाहिए। अगर आपका कम या ज़्यादा आ रहा है 360 डिग्री से, दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग इन योर कैलकुलेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको पाई चार्ट में विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपने जैसे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40, 120 डिग्री आपने ये ड्रॉ किया। ओके उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, पाई चार्ट इज़ अ वेरी कॉमन टूल यूज टू एनालाइज डाटा। एनालाइज डाटा के लिए पाई चार्ट बहुत ईजी वे है। अब जैसे यहाँ पे कुछ इलेक्शंस का आपको दिया गया है कि 80 करोड़ वोटर्स ने वोट डाले, तो ए, बी और अदर पार्टीज़ के कितने वोट्स डले, ए के 23% डले, ओके अदर्स के 34 डले और बी के 43% डले। तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, जो 23% ऑफ 80 करोड़ कैलकुलेट करना है, परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 किया, परसेंटेज को चेंज करके आपका 23/100 इंटू 80 आ जाएगा 18.4 करोड़। और बी का 43% ऑफ 80 ऑफ मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, परसेंटेज 100 में चेंज हुआ, 43/100 मल्टीप्लाई बाई 80 गिव यू 34.4 करोड़। इसी तरह से जो अदर्स है वो 34% ऑफ 80 था, ऑफ मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, परसेंटेज आपका डिवाइड बाय 100 हुआ, 34 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाई 80 गिव यू 27.2 करोड़। तो ये आपकी टोटल क्वांटिटी आ गई कि ए को कितने टोटल वोट्स डले, बी को और अदर्स को कितने डले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राहुल went to shop to purchase different types of pen PQRST। एक राहुल ने इतने डिफरेंट टाइप्स के पेन खरीदे, उनका प्राइस अलग अलग था 60, 45, 75, 50 और 70। आपने इसको पाई चार्ट में शो ऑफ करना है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द प्राइस इन रुपीज़ ऑफ ईच पेन परचेज्ड। एक पेन जो है उसने हर एक पेन कितने का खरीदा, ओके तो आपने उसको एक पाई चार्ट में कैसे प्रेजेंट करोगे, तो आपने सबसे पहले इसका टोटल कर देना है। टोटल 300 आ गया, तो जैसे मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला लगाया था, तो 60 डिवाइड बाय 300 इंटू 360 डिग्री, तो ये 72 डिग्री आया। इसी तरह से 45 डिवाइड बाय 300, क्योंकि जो टोटल से डिवाइड करना है ये मेरा फॉर्मूला है, 45/300 इंटू 360 54 डिग्री, 75/300 इंटू 360 डिग्री 90 डिग्री, 50/300 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरह से 70/300 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 84 डिग्री। फिर इनका टोटल चेक कर लेना क्या मेरा 360 डिग्री आता है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ओके जैसे मैंने ये ड्रॉ करके रखा है। तो अब एंगल्स, अगर तो आपको पूरा सर्कल में प्रोटेक्टर है तो आप इजीली कर सकते हो, पर अब आप अगर आपके पास इतना ही है, हाफ सेमी सर्कल वाला है प्रोटेक्टर, तो आप क्या करोगे, पहले एक रेडियस ड्रॉ कर लोगे सेंटर पॉइंट से सर्कल के। तो बस उसको जहाँ पे आपका सेंटर है वहीं पे आपको रखना है, और जहाँ पे 72 डिग्री आता है वो मार्क करके ये आपका 72 डिग्री बन गया। तो उसी से आगे फर्दर आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है उसी को आपने फर्दर फिर से बेस बनाना है, यहाँ पे आपने पॉइंट्स रखने हैं और यहाँ से आपने काउंट करना है 54 डिग्री। तो जैसे 54 आ गया काउंट कर देना है। फिर इसी तरह से प्रोटेक्टर को इस तरफ इस सेंटर पॉइंट पे ही रखना है और यहाँ पे घुमा के 90 डिग्री का एंगल मार्क हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट 60 डिग्री था, तो आपने फिर वापस यहाँ पे रखना है
उसी के, क्योंकि जैसे जैसे आपकी लाइन बनेगी उसी तरह से आपका प्रोटेक्टर भी मूव होता जाएगा। तो ये 60 डिग्री आ गया, तो रेस्ट ऑफ द आपका 84 ऑटोमेटिकली बच गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था 8 क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन था यहाँ पे भी। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी परसेंटेज गिवन है, ओके, एज डिस्ट्रीब्यूशन इन ईयर्स है और परसेंटेज गिवन है। तो सीधा आप निकालोगे 10% ऑफ 360 डिग्री, 10% ऑफ 360, 10% ऑफ 360। तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो, क्योंकि परसेंटेज को चेंज किया, डिवाइड बाय 100 तो 36 36 36 आ गया। 5/100 मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे तो 18 डिग्री। 30% ऑफ 360 108, 15% ऑफ 360 54 डिग्री, 20% ऑफ 360 डिग्री आ गया 72 डिग्री। अब इसको मुझे पाई चार्ट में कैसे शो ऑफ करना है, इसको सबसे पहले 360 डिग्री, जैसे मैंने एक लाइन लगा ली, तो मैंने सबसे पहले इसको प्रोटेक्टर को यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ पे रख के मैंने इसको तो जहाँ पर भी मेरा 360 डिग्री आ रहा है, 36 डिग्री 36 डिग्री 36 डिग्री, यहाँ पे 30 आ गया, नीचे वाली लाइन देखनी है, और यहाँ पे 6 नेक्स्ट इज इट, ओके, हाफ ऑफ द नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। जैसे आपने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि आपने फर्स्ट 36 डिग्री आपने मार्क करनी है, तो जैसे ये आपका 36 डिग्री मार्क हो गया, फिर आपने यहाँ पे वापस रखना है, इसको यहाँ पे वापस रख के नेक्स्ट आपने 36 डिग्री, जहाँ पे 36 डिग्री आएगा वहाँ पे आपने मार्क कर देना 36 डिग्री। तो यहाँ से फिर से आपने लाइन लगा लेनी है, ये आपका नेक्स्ट 36 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट 3 एंगल्स आपके 36 डिग्री थे। 36 डिग्री 36 डिग्री, ये आपने मार्क कर दिया 36 डिग्री, फिर से आपने 36 डिग्री, थर्ड एंगल भी आपका 36 है, यहाँ पे आपने वापस रखा इस सेंटर पॉइंट पे, ये लाइन के ऊपर आपकी लाइन होनी चाहिए, और यहाँ से आपने देखना है 36 यहाँ पे आ रहा है, तो जहाँ पे 36 आ रहा है वहाँ पे आपने मार्क कर देना 36। ये आपका 36 डिग्री के एंगल बन के, वहीं से आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद आ गया आपका 18 डिग्री, फिर से आपने यहाँ पे रखना है सेंटर पॉइंट पे, आपका प्रोटेक्टर भी उसी के अकॉर्डिंग टू मूव करता जाएगा। नेक्स्ट है 18 डिग्री, 18 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा 20 से 2 डिजिट्स पहले, ओके, तो ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा 18 डिग्री, ये 18 डिग्री आ गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट एंगल है 108 डिग्री, जो कैलकुलेट करके आया, तो 108 डिग्री वापस आपने यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ पे रखा, देखा 108 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ नीचे वाली रो देखनी है आपने, 108 110 से 2 डिजिट पहले, तो यहाँ पे आपका मार्क आ गया, ओके। तो जैसे ही आपका मार्क आ गया आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लेना सेंटर पॉइंट से, तो ये आपका बन गया 108 डिग्री। उसके बाद आपका आ गया 54 डिग्री, वापस आपने इसी सेंटर पॉइंट्स पे रखना है, और आपका यहाँ पे 54 डिग्री नीचे वाली लाइन, यहाँ पे आपका आ जाएगा 55 से जस्ट पहले, तो ये आपका 54 डिग्री आ गया, दिस इज़ योर 54 डिग्री। और जो रेस्ट आप चेक कर लोगे ये ऑटोमेटिकली 72 डिग्री आपका बच जाएगा। तो आप इसको डिफरेंट कलर से शेड भी कर सकते हो, सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से आपने एक पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।